Good evening, everyone. Welcome to today's webinar on Bharat's real estate, market trends, and legal implications. Today, we have with us Mr. Anand Verma. Mr. Verma is the managing partner at Team Legal, founder of Let's Learn Law, and a company secretary and lawyer. He has more than 15 years of experience in the field and is going to share some critical insights with us. But before we begin, I'd like to request all the participants to keep their cameras and mics closed and ask questions in the chat box only. So without further ado, Mr. Verma, the virtual stage is all yours. Uh, Good evening, everyone. I welcome you all on behalf of Let's Learn Law, and I to all the attendees who have joined the webinar for today's. And I would like to let you know that today's webinar, which we are conducting, is on the real estate sector. That how the real estate sector of India is shaping, what were the what were the factors which are responsible for the past sluggishness of the real estate sector, and what is the present scenario, and what will be the future scenario of the India's real estate market, because this is one of the most important sector which drives a very important uh, driving force for our economy. As we know that Indian economy is slowly gaining a stage, and we are trying to reach to the podium uh, of the most GDP. Either we talk into the terms of GDP, or if we talk in terms of the growth of the development, manufacturing activity. So the real estate sector is one of the most crucial sector which is driving the economy. So because not only the investors who are involved in the real estate sector, not only the uh, the builders or promoters, but the middle income group are the most contributor of this real estate sector. So if that is the biggest size which we have, who are contributing to the real estate market and its growth. So let's start our today's presentation, and I will dive you through that how the Bharat's real estate is being shaped. I'm just sharing the PPT. So, as I said, that today we will be discussing about the Bharat's real estate market trends and legal implications. So, real estate, and we will not go much back, but I will take a look into the last 10 years, and most importantly, the last 3 years, that is post COVID, that is 2020 to 21, 22, and the last year was a very deciding factor in the Bharat's real estate. So the Indian real estate industry, you will you will be surprised to know that in 2023 it is worth 265 billion in 2023. So uh, जो हमारी इंडस्ट्री है इंडिया की, भारत की, वो एक एक वूपिंग स्टेज से इट इज गोइंग ऑन. सो last 10 years, if you will talk about 20, 2010 or 2011, so
all the tier 2 or tier 3 cities were seeing a massive development. हर जगह कुछ ना कुछ डेवलपमेंट हो रहा था, बट 2020 12 or 13 14 तक there is a sluggishness, a depreciation in the real estate industry. तो जो इन्वेस्टर्स थे वो लोग धीरे धीरे मूव आउट होने लगे मार्केट से. अगर देर आर सर्टेन ट्रेंड्स जिन्होंने इसको सेट किया हमारे रियल एस्टेट इंडस्ट्री को. सो एक एक इवेंट हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट इन 2016 नवंबर, दैट इज द डीमोनेटाइजेशन. डीमोनेटाइजेशन एक ऐसा दौर था जिसने रियल एस्टेट इंडस्ट्री को, इट वाज द बिगेस्ट इंडस्ट्री which was affected by the demonetization. Other industries were also, other sectors were also, but this real estate was also one of the most affected because it cleared जो black money का flow था real estate में, वो धीरे धीरे बाहर होने लगा. उसके बाद अगर हम बात करें अभी के सिनेरियो की, तो 2023 में जो ड्वेलिंग यूनिट्स हैं वो अराउंड 4,35,000 यूनिट्स जो हैं वो कंप्लीट हुए, और उसका 59% था मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन और नेशनल कैपिटल रीजन. सो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अक्रॉस इंडिया इस समय कंपटीशन है कि कौन सी सिटी स्मार्ट सिटी बनेगी, कौन सी सिटी इंडिया के 5 ट्रिलियन ग्रोथ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन करेगी. तो अभी जो सिटीज हैं जो लीड कर रही हैं वो है मुंबई, एनसीआर में मोस्ट प्रेफरेबली the Noida and Gurgaon. These three cities are taking the lead, and other cities are Ahmedabad, Jaipur, Pune, Delhi. There are other 10 to 12 tier metropolitan and tier 2 or tier 3 cities which are taking the lead. So the 7 cities are Mumbai metropolitan, NCR, Bangalore, Hyderabad, Chennai, Pune and Kolkata. So the residential real estate जो मार्केट है भारत का वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और दैट इज एडिंग टू द इंडियाज ग्रोथ स्टोरी. और जो लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, जो रिपोर्ट्स आए हमारे पास, गवर्नमेंट के भी रिपोर्ट्स आए, प्राइवेट फर्म्स ने भी रिपोर्टिंग करी, तो उसमें जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ था दैट वाज 15 to 25% स्पाइक हुआ है. हम और जो हमारा 2023 में जो कंप्लीशन हुआ यूनिट्स के, वो 8% ज्यादा था 2022 से. सो व्हाट इज, हम इससे क्या कह सकते हैं कि जो ग्रोथ है, द ग्रोथ इज गोइंग विद अ गुड स्पेस. जो एक कैटलिस्ट के लिए जो रियल एस्टेट इंडस्ट्रीज वर वेटिंग, सो वो कैटलिस्ट रियल एस्टेट मार्केट को मिला. सो 2023 में 4,02,000 होम्स जो हैं वो कंप्लीट हुए. इसमें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें मुंबई और एनसीआर जो हैं वो दोनों मिला के 2,57,780 यूनिट्स उन्होंने कंप्लीट किया, और जिसमें मुंबई का शेयर रहा 1,43,500, और एनसीआर जो कि दिल्ली, गुड़गांव एंड नोएडा, इनका 1,14,280 यूनिट्स. अगेन आई एम सेइंग कि जो टोटल कंप्लीशन हुआ उसमें 59% शेयर मुंबई और एनसीआर का रहा. इट इज अ वेरी फैसिनेटिंग फिगर. 2022 में जहां 2,13,000 हाउस कंप्लीट हुए थे, वहीं 2023 में it is 2,57,000. So it is a 21% yearly growth. बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई की बात करें, बेंगलुरु इज ऑलरेडी आईटी हब, तो बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई मिला के जो है देयर वर 87,190 यूनिट्स दैट वाज कंप्लीटेड, और पुणे में 65,000 यूनिट्स कंप्लीटेड. सो महाराष्ट्र में पुणे इज आल्सो a very preferred location for investment by the IT sectors, by the people of India. Bangalore is in Karnataka is topping the list.
So the what we are seeing, so there are some players in the real estate industry, the big players like the Prestige Estate, Macrotech and DLF. So these groups have seen a massive increase of 70%. Macrotech का 54% और DLF 44%. DLF हम सब जानते हैं कि DLF has said the गुड़गांव, और गुड़गांव एक लीडिंग आईटी और कंपनियों के लिए हब है। और ये तीनों जो कंपनीज हैं, इन्होंने एक स्पेक्टेकुलर ग्रोथ देखा है लास्ट 2 इयर्स में। सो अगर हम बात करें एनसीआर की, तो बहुत सारे आइडियल इन रियल एस्टेट, सो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स कि जिन लोगों ने 2010-11 में लेट सपोज कि 40 लाख का कोई यूनिट खरीदा, फ्लैट खरीदा, तो 2020 में और 21 में उसकी वैल्यू 35 लाख है। So people were surprised कि क्या करें, 10 साल होल्ड करने के बाद भी we are getting either the same amount or the less amount. So people started selling, क्योंकि लगता था कि 10 साल तक कोई ग्रोथ नहीं दिख रही, तो अब आगे क्या होगा। एक एवरेज ग्रोथ चल रही थी, बट दैट वाज नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग कि वो आगे इन्वेस्टमेंट को वो स्टेयर कर सके। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा दैट आई वांटेड टू शेयर, there is a private banking unit of Axis Bank called Burgundy Private and Haroon India. इन्होंने क्या किया, ये हर साल एक अपना पब्लिकेशन करते हैं of the 500 valuable companies of India. इस साल there is a major shift, और 2023 की जो लिस्ट आई उसमें 15 रियल एस्टेट कंपनियों ने जगह बनाई। दैट इज अ वेरी enthusiastic and motivating factor. पहले जो पहली कंपनी रही 500 में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली, टू मेक इट प्रेजेंस, इज द DLF, जो कि नंबर 30 पे रही। सेकंड मैक्रोटेक, गोदरेज, ओबरॉय। मैं इसलिए कह रहा हूं why I have put these 15 companies कि see, we know that people are investing their hard earned money. So before investment you need to know कि आपका पैसा कहां जा रहा है। I know we are doing cases in Delhi, NCR, in Rajasthan, in Haryana, in Punjab, in Himachal Pradesh. So the people who have lost their earnings in these properties by purchasing house or commercial properties are now moving from pillar to post, and their money is stuck from last 10 years. So मैं अभी बहुत जल्दी दूसरा एक वेबिनार करने वाला हूं, जस्ट फॉर की व्हाट आर द प्रिकॉशंस यू नीड टू नो बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ प्रॉपर्टी। सो ये जो कंपनियां हैं, एटलीस्ट नोबडी कैन इंश्योर कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन फ्यूचर में क्या होगी, बस एज ऑफ नाउ ये देखने पे समवन कैन वाउच ऑन दीज कंपनी। So these are the 15 companies: DLF, Macrotech, Godrej, Oberoi, Phoenix, Prestige, Embassy, Mindspace, Bergman, Brigade, DB Realty. So these are the companies who are doing good in the real estate sector, and we are having less number of cases against them, or if there are cases, they try to dissolve it all. They try to solve all the problems so that the buyers should not approach to the court. So at this stage, I can say that these 15 companies has made their presence in the top 500 valuable companies of 2023. एक और important factor है कि जहां 2022 में जो eligibility criteria था, वो था एक कंपनी के कैप का 5,947 करोड़, जो कि वो 2023 में हो गया कि मिनिमम क्राइटेरिया होना चाहिए 6,700 करोड़ का, तभी वो कंपनी इस लिस्ट में अपनी प्रेजेंस बना सकती है। या दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग कि द ग्रेट इंडियन होम मार्केट। अगर आप कहीं पे लेट सपोज मुंबई, आप गुड़गांव, नोएडा में अगर किसी के फ्लैट्स हैं और लोग रह रहे हैं और किसी ने परचेज करा है, इन्वेस्टमेंट करा है,
तो आप पूछ सकते हैं, लोग आजकल बात करते हैं कि तुम्हारे एरिया में रेट क्या चल रहा है, हमारे एरिया में रेट क्या चल रहा है। सो ऐसा है कि 2015 से 21 तक जो एक मार्केट ट्रेंड था, देयर वाज अ एक, अगर हम जो डेटा मैंने कलेक्ट किया है टॉप 10 सिटीज का किया है, जो कि एक बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, बढ़िया, जहां पे माइग्रेशन है, माइग्रेशन है फ्रॉम दी टायर 2 टू टायर 3 सिटीज से, वो लोग इन टॉप 10 सिटीज में आते हैं फॉर जॉब, फॉर बिजनेस एंड फॉर मेनी अदर पर्पसेस। सो अगर देखा जाए वो टॉप 10 सिटीज का एवरेज जो एक परचेजिंग पावर थी, वो थी 2,50,000 पर ईयर। और यू हैव टू सी दिस नंबर कि जो 2022 में 54% से शूट किया, एंड नाउ इट हैज गॉन टू 3,65,000 न्यू होम्स। और फर्दर 2023 में ये फिगर चली गई 4,76,000। सो सीइंग दिस फिगर, ये एक बहुत रे ऑफ होप है बायर्स के लिए भी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनके लिए भी, इन्वेस्टर्स के लिए भी, बिल्डर्स के लिए भी, कि थिंग्स आर नाउ गेटिंग रिजॉल्व्ड। कि किस तरीके से अगर मार्केट ट्रेंड इस तरीके से आगे चलता रहता है तो एक रे ऑफ होप है सबके पास। अब क्या हुआ ऐसा इस पिछले 7 साल में कि ये फिगर्स जो हैं, जो एक इंडस्ट्री, एक रियल एस्टेट सेक्टर जो है बिल्कुल स्लगनेस था, एक फ्लैट ग्रोथ शो कर रहा था, वो अचानक से पिछले 2 से 3 साल में एक रे ऑफ होप शो करने लगा है। सो देयर आर, आई हैव फिगर्ड आउट, देयर आर 10 फैक्टर्स जिन्होंने इस पे काम किया। कुछ गवर्नमेंट के पॉलिसीज थी, कुछ इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन था। देयर आर मेनी फैक्टर्स, तो 10 फैक्टर्स है, वन बाय वन आई विल डिस्कस। द फर्स्ट वन इज द डीमोनेटाइजेशन। डीमोनेटाइजेशन हुआ, सबको याद होगा वो वो नवंबर का दिन जब रात को आवर ऑनरेबल पीएम ने कहा कि भाई ऐसा ऐसा है और ये नोट जो है अब लीगल टेंडर नहीं रहे। सबने वो प्रॉब्लम देखी, सब लोग परेशान हुए। तो ये डीमोनेटाइजेशन जो है उसका क्या असर हुआ कि रियल एस्टेट में ब्लैक मनी का इन्फ्यूजन बहुत ज्यादा था। वो ब्लैक मनी एट दैट टाइम रियल एस्टेट सेक्टर ऑलरेडी सफर कर रहा था, डीमोनेटाइजेशन से और ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई कि जो ब्लैक मनी अगर वैसी अनअकाउंटेड मनी थी कि जो बिल्डर लगाना चाहता था अपने उसमें, वो भी खत्म हो गया, सबको तुरंत बैंक में लाइन में खड़े होकर डिपॉजिट करना पड़ा। तो जो ब्लैक मनी का फ्लो था वो मार्केट से खत्म हो गया, और वो फिर प्रॉब्लम हुई 4 साल 5 साल, बहुत प्रॉब्लम्स हुई, प्रोजेक्ट स्टकअप हो गए, कोई रूट नहीं दिखाई दे रहा था, और इतने सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कोर्ट में चले, केसेस हुए। बट धीरे धीरे जो ब्लैक मनी, अब क्या हुआ, उससे प्रेशर आया बिल्डर्स के ऊपर कि अब पैसा तो आना नहीं है उस रूट से, सो नाउ दे हैव टू लुक द अनदर रूट। वो अनदर रूट क्या होगा, वो कोई भी एक वायबल और एक स्टेबल रूट होना चाहिए। तो धीरे धीरे उनको भी चॉकआउट करने में समय लगा। सो नाउ नए डेवलपर्स आ रहे हैं, गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, तो धीरे धीरे प्रोजेक्ट्स आर गेटिंग आउट ऑफ द क्लचेस। दूसरा, एक रेरा एक्ट आया, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 इंप्लीमेंट हुआ मई 2017 में अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। जब रेरा आया बहुत केओस हुआ, क्या है, कैसा फोरम है। इनिशियली गवर्नमेंट को भी समझने में समय लगा, बायर्स को भी समझने में समय लगा, बिल्डर्स को भी समझने में समय लगा, डेवलपर्स को भी समझने में समय लगा, इन्वेस्टर्स को भी समझने में समय लगा। बट नाउ द वाटर इज गेटिंग क्लियर, द क्लाउड इज डिसअपेयरिंग। धीरे 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 जो लूप होल्स थे शुरुआत में, रेरा में बहुत प्रॉब्लम्स थी, बट धीरे 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 रेरा एक अपने एक, आई विल नॉट से कि बहुत अच्छे शेप में आ गया है, बट एक एक अच्छा एनवायरनमेंट बन गया है। गवर्नमेंट इज ट्राइंग हार्ड कि रेरा के प्रोविजंस को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करें,
और अकाउंटेबल करे। रेरा ने कहीं ना कहीं एक बैलेंस बनाने की कोशिश करी बायर्स के साथ और बिल्डर्स के साथ। पैसा किसी का भी स्टक हो, वो फाइनेंशियल अगर स्ट्रेस है किसी को, आइदर बायर और बिल्डर, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम। सो रेरा आने के बाद जो है बायर्स के बिल्डर्स के लिए बहुत स्टिफ हो गई चीजें। दे हैव टू फॉलो अ सर्टेन नॉर्म्स। पहले कुछ नहीं होता था, पैसा आ रहा है, कहाँ लग रहा है। मैं लेटर पार्ट ऑफ द वेबिनार में मैं बताऊंगा कि रेरा के क्या प्रोविजंस हैं, उसमें क्या स्टिफनेस है, क्या पेनल्टी क्लॉजेस हैं, बायर्स के लिए क्या है, बिल्डर्स के लिए क्या है। तो एक रेरा भी इस मार्केट को हेल्प, रेरा ट्राई टू हेल्प दिस मार्केट जो एक बहुत ही स्लगनेस आ रहा था। जीएसटी आया, एवरीबॉडी नोज की जो हम पिछले 70 साल से 72 साल से इंडिया में हमारा एक एक टैक्स रिजाइन था, कॉम्प्लेक्स टैक्स रिजाइन, सर्विस टैक्स, वैट एंड एवरीथिंग। ऑल ऑफ अ सडन गवर्नमेंट सेड कि नो, नाउ वी आर मूविंग टू अ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एंड इट वाज आल्सो इम्प्लीमेंटेड इन 2017. So earlier everybody faced problem, but now things are getting settled. और रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत इसमें जो है हेल्प मिली जीएसटी के लिए, कि धीरे 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 एक टैक्स रिजाइम आया और एक एक जो सर्विस टैक्स और वैट और बहुत सारी चीजें चली होती थी, एक जीएसटी आया और एक ऑप्शंस दिया गया बिल्डर को, बायर को। देयर आर मेनी सर्कुलर जिसमें कि डिवाइड किया गया अफोर्डेबल हाउसिंग, और उसके ऊपर 45 लाख से नीचे है तो, उसके ऊपर है तो आप किस उसमें आओगे, आपको इनपुट क्रेडिट चाहिए नहीं चाहिए, देयर आर थिंग्स हैव सेटल्ड डाउन। तो ये दिस फैक्टर आल्सो हेल्प इन गेटिंग अ बूस्टर डोज टू द real estate sector. Now the fourth important factor is the Insolvency and Bankruptcy Act. Why I'm saying the first four is this credit goes to the government. First four. The first one is the demonetization, second is RERA, third is GST, and fourth is the Insolvency and Bankruptcy Act. 2016 में ये एक्ट आया, अगेन लॉट ऑफ केओस, क्या होगा, प्रोविजंस कैसे होगा, प्रॉब्लम हुई। वी आर आई एम also acting, also practicing in insolvency. So हम जो स्टार्टिंग में आया, सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम हुई कि एक रियल एस्टेट कंपनी अगर आती है इंसॉल्वेंसी में तो क्या होगा। जब 2017-18 में आना शुरू हुआ, रियल एस्टेट की कंपनी इंसॉल्वेंसी में जाने लगी, तो क्लियर नहीं था। इवन एट दैट टाइम बायर्स जो थे, होम बायर्स, वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के कैटेगरी में आते थे। क्लेम जो हम फाइल किया करते थे ऑपरेशनल कैटेगरी के कैटेगरी में फाइल किया करते थे। बट बाद में देयर वाज अ सर्कुलर आया जिसमें कि बायर्स को फाइनेंशियल क्रेडिटर के उसमें कैटेगरी में शामिल किया गया। एंड देन उसके बाद जो है, अब धीरे धीरे जब अब रियल एस्टेट की कंपनियां जो जाती हैं, तो एक पैटर्न सेट हो रहा है जिसमें जो आईआरपी होता है वो उसको कैसे रिजॉल्व कर सकता है उस सिचुएशन को, कोई नया वो लाके, डेवलपर लाके, या किस तरीके से इस चीज को वो किया जा सकता है, सॉल्व किया जा सकता है। इस पे गवर्नमेंट का और कोर्ट का एक एम्फेसिस है। फिफ्थ फैक्टर है इंडियन कोर्ट्स जजमेंट 2017 एंड 19। अब आप देखो, ये सारा वही ड्यूरेशन है 2014 के बाद वाला, 2014-15, मतलब 2016 से जो शुरू हुआ। तो आप ऑल ऑफ अ सडन हर सेक्टर में, हर जगह कुछ ना कुछ थिंग्स वर हैपनिंग। तो 17 और 19 में आप देखो, ये केस आया आम्रपाली का, जेपी का, यूनिटेक का, जो कि ये सब पुराने केसेस चले आ रहे थे। गवर्नमेंट ने इंटरवेंशन किया, जुडिशरी ने इंटरवेंशन किया। आम्रपाली का केस, ठीक है, जिसके भी आम्रपाली में इन्वेस्टमेंट थे उस समय लगा कि पैसा डूब गया, बट नो, एक कंटिन्यूअस एफर्ट होता रहा। और आज आम्रपाली, जेपी और भी जो इस तरह की कंपनियां, जो बिग कंपनियां जो इंसॉल्वेंसी में चली गई, वो उनको आइदर सुप्रीम कोर्ट के सुपरविजन में, आईआरपी के सुपरविजन में थिंग्स आर गेटिंग क्लियर्ड और लोगों को अपना यूनिट मिल रहा है। और सिक्स्थ फैक्टर हुआ कि एक टाइम आया 18, 19 और 20 में, जहां पे जो लार्ज जो फाइनेंसिंग कंपनियां थी, एनबीएफसीज जिसको हम कहते हैं,
IL&FS, इंडिया बुल्स और DHFL ये कोलैप्स हुए। ये क्या करते थे, इन्होंने लोन्स देना शुरू किया हर बिल्डर को, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, लोन्स वेयर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड, और वो बिल्डर अगर रीपे नहीं कर पाता था तो उसका अल्टीमेटली इफेक्ट होता था प्रोजेक्ट पे। तो इनकी भी जब गवर्नमेंट की रेगुलेशन बढ़ी, इनके ऊपर स्क्रूटनी बढ़ी, तो ये भी क्लचेस में आए और ये दे कोलैप्स्ड। और इनका जब कोलैप्स हुआ, इन्होंने फाइनेंसिंग रोक दी, एक टाइम आया फाइनेंसिंग रोक दी। तो क्या हुआ कि जो स्मॉल बिल्डर थे उनको इजी फाइनेंस करना अब मुश्किल हुआ। तो जो बड़े कॉर्पोरेट बिल्डर्स थे उन्होंने अपना मार्केट में शेयर बढ़ाया। जो बड़ा प्लेयर है, जिसका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, जिसका एक नेटवर्क है, जिसको पता है कि मार्केट के शॉक को कैसे झेला जाता है, सो उस तरीके के बिल्डर धीरे धीरे इन्वेस्टर जो है वो रोपन होने शुरू हुए। फिर जो सातवां है, अब जो जो सेवेंथ फैक्टर है, वो क्या हुआ, a parallel play had been going on in the microeconomic level। जो माइक्रो इकोनॉमिक लेवल है, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट सेक्टर, जिसका की प्राइस जो है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा 15 से 21 तक, कुछ भी एप्रिसिएशन के नाम पे नहीं था। और उस समय इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने एक रेपो रेट, अगर आपको याद होगा, आरबीआई ने बहुत टाइम तक नहीं बढ़ाया। तो जो होम लोन का जो इंटरेस्ट रेट था वो 6.57% तक चला गया। तो वो एक दौर था 2020-21 के बाद कि लोगों की इनकम बढ़ी और इंटरेस्ट रेट कम था, तो लोगों ने इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया। आठवां जो फैक्टर है दैट इज मिलेनियल्स। ये मिलेनियल्स कौन से हैं? ये है 25-40 इयर्स के वो लोग जो इंडिया की पॉपुलेशन के में 440 मिलियन हैं। 25 to 40, इंडिया इज द यंगेस्ट इकोनॉमी अक्रॉस द ग्लोब। अभी तक हम पूरे वर्ल्ड में सबसे यंगेस्ट हैं। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो हमारे इकोनॉमी को ड्राइव कर रहा है। सो जो 25 से 40 साल के लोग हैं, यही सबसे बड़े इन्वेस्टर भी हैं रियल एस्टेट में, जो घर खरीदना चाहते हैं, अपना अपने घर में रहना चाहते हैं। बट इनिशियली 15 से 21 तक इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था, मार्केट उस हिसाब से ट्रेंड नहीं था, मार्केट में कोई होप नहीं दिख रही थी। बट ये धीरे धीरे 21 के बाद जब ये चीजें चेंज होनी शुरू हुई, सो दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। और इनका गवर्नमेंट इज वेरी मच श्योर कि ये जैसे 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 धीरे धीरे ये निकलते आएंगे उस क्लचेस से और इनको नीड होगी, ये बहुत बड़ा फैक्टर है होम जो रेजिडेंशियल यूनिट है उनके सेल के लिए। सो पैंडेमिक में जो मिलेनियल्स थे उनको ये बात समझ में आई, जो 25 से 40 साल के लोग थे, जो ठीक है रेंट पे रह रहे थे, बैंगलोर में रेंट पे रह रहे थे, पुणे में रेंट पे रह रहे थे, गुड़गांव में रेंट में रह रहे थे, नोएडा में रेंट में रह रहे थे। उनको ये समझ में आया कि हमको एक कोई भी अनफॉर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो सकता है, सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन स्पेस। तो इसका एक स्मॉल परसेंटेज जो है वो स्टार्ट किया घर को खरीद, जिससे कि एक एक अच्छा सेगमेंट में ग्रोथ है। नाइन्थ फैक्टर है वर्क फ्रॉम होम। एक हमको सबको एक जरूरत हुई जूम रूम की। जूम, आई एम टेकिंग द नेम क्योंकि स्टार्टिंग में जब कोविड पेंडेमिक आया और लॉकडाउन आया, सो एवरीबॉडी वाज ऑन जूम। धीरे धीरे और कंपनियां आ गई, अभी वी आर ऑन टीम्स, गूगल मीट एंड एवरी, बहुत सारे। तो बट एक कंसेप्ट आया जूम रूम। अरे यार, तुम्हारे पास जूम रूम है? जूम रूम मतलब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो कि नहीं? तो उसमें एक ह्यूज डिमांड आई, टू टू बीएचके की, 3 BHK की। तो वो भी एक जो जो 1 BHK में था वो 2 BHK में मूव करना चाहा, जो 2 BHK में था वो 3 BHK में। द लास्ट फैक्टर इज हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। ये कौन है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल? जिनके पास पैसा है, but they are the real investors. They have the money in their pocket, but only after seeing the trend they take out that money. So pandemic के बाद एक और
फैक्टर आया, और ये जो HNI है, ये एक एक इनका बेस है लाइफ का, येलो फैक्टर जिसको हम कहते हैं, यू लिव्ड ओनली वंस। सो इनको ये समझ में आया कि अब जब इनको, दे आर वेरी मच वेरी कीन एंड वेरी डीप इंक्वायरर ऑफ एवरीथिंग, कि अगर हमें 10 रुपए भी लगा रहे हैं तो आखिर ये मेरे को 6 महीने साल भर में ये पैसा मेरे को कैसे वापस मिलेगा, मार्केट का ट्रेंड क्या है, पास्ट ट्रेंड क्या था, प्रेजेंट क्या है और फ्यूचर कैसे होगा। तो जब नाउ 2021 के बाद जो मार्केट का शिफ्ट शुरू हुआ, स्लोली स्लोली स्लोली, ये जो शिफ्ट है 21 से स्लोली दिख रहा था, बट फिर भी पीपल वेर वेरी नॉट वेरी मच श्योर कि जो मार्केट पंडित से कि ये ट्रेंड आगे बढ़ेगा कि क्या होगा या फिर बैक चला जाएगा। बट 22 में अच्छी फिगर दिखाई दी। 23 वाज अ वेरी नाइस ईयर फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, और 24 में एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टिंग कि ये दिस विल टेक टू अ नेक्स्ट लेवल। सो जो न्यू होम प्राइसेस थे वो 15% तक बढ़ गए एवरेज टॉप 10 सिटीज में। मैं टॉप 10 सिटीज बार बार कह रहा हूं कि मैंने टॉप मेट्रो सिटीज पे रिसर्च किया है और वहां से ये सारे फिगर्स मैं ले आया हूं। सो जब 15% इंक्रीज हुआ तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा एंड द पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग। व्हाट इज द फ्यूचर ट्रेंड ऑफ भारत रियल एस्टेट? अभी तक तो हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, पास्ट की बात कर रहे थे कि वाह क्या रहा रीजन कि पास्ट में जो है इंडिया का रियल एस्टेट जो है वो क्यों स्लगिश रहा, क्या उसके फैक्टर्स थे। फिर जो ये हम एक ट्रेंड देख रहे हैं, इट इज नॉट अबाउट ओनली बैंगलोर और हैदराबाद और अहमदाबाद और NCR, which includes Noida, Delhi, Gurgaon, or any other cities you take, but there are many components which are contributing to this कि क्या ट्रेंड अभी है और क्या फ्यूचर होगा। सो देर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल, जो मैंने बहुत छोटी छोटी चीजें बताई कि जिसने पीछे शेप अप किया कि नहीं ये इस इंडस्ट्री को आगे कैसे जाएंगे। तो देर आर डिफरेंट फैक्टर्स जो डिफरेंट डिफरेंट कॉर्नर पे अपना काम कर रहे थे, एंड नाउ दे आर ऑल टुगेदर। जब सबका एक डोमिनो इफेक्ट आया, तो नाउ द industry is moving upward. So the estimated growth है 2023 की $265 billion, और by 2028 it is expected, अगर इसी ग्रोथ इसी रेट से अगर प्रोग्रेस चलती रही तो it will reach to $828 billion India's भारत रियल एस्टेट। मैं लेटर पार्ट ऑफ स्लाइड में, चूंकि वेबिनार में वी हैव द रिस्ट्रिक्टेड टाइम, हम बहुत ऑन एंड ऑन बहुत लंबा नहीं जा सकते हैं, मैं दुबई से भी कंपेयर करूंगा इंडिया मार्केट ट्रेंड को कि आखिर अगर वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम 2047 तक डेवलप कंट्री हो जाएंगे, 2040 तक, और हम अभी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम आगे 3rd होना है, हमको 2nd जाना है, हमको 1st पे जाना है लार्जेस्ट इकोनॉमी। तो उसमें हमको क्या क्या चीजें हैं, तो उसके लिए वी कैन नॉट बी ओनली डोमेस्टिक, हमको compete करना पड़ेगा। द भारत हैज टू compete with the entire world। किस तरीके से हम दुबई से compete कर सकते हैं, हम यूके से compete कर सकते हैं, हम यूएस से compete कर सकते हैं। So every industry को compete करना पड़ेगा, then we will reach on the podium। उसके पहले it is not possible। So अभी तो just churning out शुरू हुआ है, अभी तो churning out है ये। So ये momentum have to be maintained without any hindrances, then only the India will reach to a height। और ये जो ग्रोथ है ये है कंपाउंड CAGR है, that is what we call it is a compound annual growth rate, और ये 25.6% का है। दिस इज, और मार्केट साइज जो है 2024 में $0.33 ट्रिलियन का होने जा रहा है, जो कि 2029 तक इट विल रीच टू 1.04 ट्रिलियन बाय 2029। अब मैं कहता हूं कि वॉट एवर सिटीज यू आर लोकेटेड, आइदर दिल्ली NCR, either you are in southern part of the India, you are western part of the India, you are eastern part of the India,
So there is a momentum of infrastructure growth across India. So that infrastructure growth, let's suppose कि मुंबई में अभी एक वो लिंक नवी मुंबई और ओल्ड मुंबई को एक बहुत ही क्या कहेंगे फैसिनेटिंग और बहुत डेयरिंग प्रोजेक्ट वो समुंदर के ऊपर वो बना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट ब्रिज उन्होंने बनाया है, जिससे कि वहां जो हमको 2 घंटे 2.5 घंटे मुंबई से वहां जाने में लगते थे नवी मुंबई, दैट इज रिड्यूस टू 20 मिनट्स. सो दिस अगर हम नोएडा की बात करें तो सितंबर में नोएडा इज गेटिंग एशियाज बिगेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जेवर. बेंगलुरु की बात करें इसी तरीके से नया बेंगलुरु बन रहा है. हम हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद में भी इसी तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं. हम गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में इसी तरीके से डेवलपमेंट हो रहे हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज डिफरेंट. सो ऑल दीज आर पुटिंग अ synergy effect. What we called is 2 plus 2 is equal to 5. So this is the reason कि why अगर सिर्फ एक सेक्टर एक स्टेट ग्रो करेगा तो कभी भी पूरा इंडिया ग्रो नहीं कर सकता. टू बिकम टू कम इट ऑन अ पोडियम पोजीशन, ईच एंड एवरी स्टेट हैज टू कंट्रीब्यूट. तभी जो है वी कैन रीच टू आवर डिजायर्ड गोल. जो टॉप 10 सिटीज हैं उसमें 4.6 लाख न्यू होम सोल्ड हुए. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जो टॉप 10 सिटीज हैं उसमें जो माइग्रेशन है फ्रॉम द टायर 2 और टायर 3 सिटीज का, एवरी ईयर इट्स एन एवरेज माइग्रेशन ऑफ 50 लाख. अब आप ये समझो कि वो 50 लाख लोग हर साल टॉप 10 सिटीज में जा रहे हैं और टॉप 10 में 50 हैं, तो आप जोड़ लो कि 4 से 5 लाख लोग एक सिटी में एक साल में आ रहे हैं. नोएडा में आ रहे हैं, दिल्ली में आ रहे हैं, गुड़गांव में आ रहे हैं, बेंगलोर में आ रहे हैं, हैदराबाद में आ रहे हैं, चेन्नई में आ रहे हैं, जयपुर में आ रहे हैं. अब इन सारे लोगों को कुछ तो कुछ चाहिए, तो द फर्स्ट थिंग इज शेल्टर. हाउस कैसे होगा? बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है चाइना में अगर हम अगर कंपैरिजन करें इंडिया का, तो 15 से 20 लाख होम चाइना में हर साल सोल्ड होते हैं. 15 से 20 लाख, ठीक है. और हम उस फिगर से अभी बहुत पीछे हैं. और कभी कभी पीक में चाइना में 1 करोड़ तक घर बेचे गए हैं. पॉपुलेशन हमारी उनसे आगे हो गई, हम नंबर 1 के हो गए, तो हमको नंबर 1 में होने के लिए उनके नंबर से compete करना है. तो ये जो 440 मिलियन मिलेनियल्स हैं, ये बहुत बड़े पोटेंशियल बायर हैं रेजिडेंशियल यूनिट्स की या छोटे मोटे रिटेल या कमर्शियल्स यूनिट की, जो इन्वेस्ट करेंगे. सो दो द गवर्नमेंट और द रिसर्चर्स or the concerned persons of the real estate regulators, they are very much confident that the next 5 to 6 years is going to be a good market for the real estate. ये लोग धीरे धीरे इनकम लोगों की बढ़ रही है. अब यू विल बी सरप्राइज टू नो, अगर हम एक नोएडा की बात ले लें तो 2017-18 में जो घर 45 लाख रुपए का था उसके लिए बायर नहीं मिलता था. और आज 2023 की हम बात करें, 24 वी हैव जस्ट स्टार्टेड, अगर हम 2023 की बात करें, वही 45 लाख का घर आज 90 लाख का हो गया है. और अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है यूनिट्स की, मतलब देयर आर lot of inquiries on these. So this is showing a increasing trend. 2023 में अब एक क्वेश्चन है जो इस स्लाइड में मैंने लिखा था कि विल द इंक्रीजिंग ट्रेंड विल कंटिन्यू. एक अब इसके साथ देखिए, अब जब कोई चीज आगे के लिए इसमें नियम का जारी जो है, मतलब जो ब्राह्मण पेशा करता है उसको एक तो दिखाना पड़ेगा. सो जो प्लीज अपना प्लीज म्यूट योर माइक, देयर आर अदर पार्टिसिपेंट्स आल्सो. सो
एक मार्केट में एक बात चल रही है कि दिस इज रियल और दिस इज बबल, कि हमको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्या ये ट्रेंड आगे कंटिन्यू रहेगा। सो बहुत रिसर्च किया है मैंने और बहुत सारे रिपोर्ट्स पढ़े हैं, बहुत सारी चीजों को मैंने किया है। तो माय अजम्पशन इज दैट कि लास्ट ईयर 2023 में ये प्राइस इंक्रीज हुआ 15%, जो कि एक मेजर शिफ्ट है। ऐसा ऐसा नहीं होता है कि 15%, 20%, 25% एक साल में बढ़ जाए, धीरे धीरे 2%, 3%। बट मसला था जो करंट ट्रेंड है वो एक एक होपफुल सिचुएशन को शो करता है, एंड दिस विल बिलीव टू बी इंक्रीज बाय 5 to 10% ईच ईयर। सो योर क्वेश्चन कि क्या हमको अभी बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इन माय ओपिनियन दिस इज द राइट टाइम। नेक्स्ट फर्दर 6 months, 1 year, 2 year, the things will get costlier only, और the stagnant भी रहने के chances बहुत कम है। Things will move on to the another level, so people will regret कि क्यों नहीं हमने कर दिया। लास्ट अब जिन लोगों ने 2020 में भी खरीदा होगा कोई यूनिट, कमर्शियल और रिटेल और यू कैन से दी रेजिडेंशियल, तो आज उस अगर उनसे आप पूछोगे तो 50% इंक्रीज कर गया उनका प्राइस। जहां 3200, 3400, 3500 की बात हुआ करती थी पर स्क्वायर फीट की, मैं रेजिडेंशियल यूनिट की बात कर रहा हूँ, दिल्ली एनसीआर की, नोएडा की, गुड़गांव की थोड़ी और हायर साइड पे हुआ करती थी। बट वो चले गए 7,000, 8,000। तो दिस इज अ whooping increase. According, these are the cities which have the most preferred investment centers: Mumbai, Bangalore, Gurugram, Noida, Hyderabad, Ahmedabad, Chennai, Delhi, Jaipur, and Chandigarh. So just I wanted to मैं बहुत दिनों से इस पे स्टडी कर रहा था अयोध्या। अब अयोध्या में रियल एस्टेट एक केस स्टडी है। मैं अयोध्या में पोस्ट प्री 22nd January and post 22nd January, after the ceremony of the Ram Mandir, prices 179% increase हो गए हैं, and the big players are investing there. So Marriott International, IHCL, Oyo Rooms, so everybody मतलब जो prices पहले 3,000 स्क्वायर फीट के थे वो 9,000 स्क्वायर फीट पे चले गए। So these things are, we are seeing just trend के इंडिया में किस तरीके से ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं। दुबई की हम बात करें, सो भारत और दुबई में क्या डिफरेंस है, क्या प्रॉपर्टी का है। सो एक बहुत ही प्रिफर्ड लोकेशन है। अभी रिसेंटली ही दुबई में इंडियंस ने यूनाइटेड यूके के, यूनाइटेड किंगडम के लोगों को इन्वेस्टमेंट में पीछे कर दिया है लास्ट ईयर। लार्जेस्ट रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स दुबई में अब नाउ आर द इंडियंस, नॉट द ब्रिटिशर्स। तो इंडिया बहुत ज्यादा लोग, तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स कि लोग क्यों जाते हैं। सो दुबई को कंपेयर किया जाता है तो मुंबई से किया जाता है। कई कई ऐसे लोकेशंस हैं दुबई में जहां पे 30 to 50% प्राइसेस चीपर हैं मुंबई में, और वहां की गवर्नमेंट बहुत सारे ल्यूक्रेटिव ऑफर्स देती है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो। रेंटल रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, वहां प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है। जो हाई नेटवर्थ इंडियन इन्वेस्टर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, दे आर वेरी मच inclined to invest in Dubai. So these are the market overview and size. Let me tell you that I will come, since on this, let me come to some legal aspect. Yeah, the legal aspect is RERA a game changer? मैंने अर्लियर पार्ट ऑफ दिस स्लाइड में भी मैंने बताया कि क्या व्हाट आर द फैक्टर्स हैं जो रियल एस्टेट मार्केट को चर्न कर रहे हैं, जो एक ग्रोथ की तरफ ले जा रहे हैं। उसमें वन ऑफ द मेजर जो गेम चेंजर है, ये है रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट 2016 में आया और 2017 में इंप्लीमेंट हुआ।
सो रेरा ने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए कि बायर्स के लिए क्या रूल होंगे, प्रोमोटर्स के लिए क्या रूल होंगे, प्रोमोटर्स मींस बिल्डर्स, और जो एजेंट है उनके लिए क्या रूल्स होंगे, किस तरीके से गाइडलाइंस होगी, क्या पॉलिसीज होगी। रेरा आना इसलिए जरूरी था कि देयर आर crores and crores of rupees stuck into the market. So डेवलपमेंट इसलिए भी नहीं हो रहा था कि एक प्रोजेक्ट है, एक मिनिमम प्रोजेक्ट अगर 5 to 6 एकड़ में शुरू होता है तो उस प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है मिनिमम 100 CR, और अगर वो प्रोजेक्ट फेल हो जाता है तो सिर्फ बायर्स ही नहीं, एक इकोनॉमी पे भी बहुत ज्यादा असर पड़ता है। Because the real estate is the backbone of any economy across the globe if you take it. So रेरा आने के बाद there were lot of changes in the real estate, जहां की अकाउंटेबल किया गया प्रोमोटर्स को। पहले रेरा के पहले सिर्फ एक प्रोविजन था कंज्यूमर एक्ट में जाना, या फिर लोग क्रिमिनल थोड़ा साइड लेते थे, FIR वगैरह करा दिया, ये करा दिया, बट दैट वाज नॉट यील्डिंग रिजल्ट। और कंज्यूमर कोर्ट में लोगों को पैसा मिलता था। कंज्यूमर कोर्ट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल कि आपका प्रोजेक्ट कैसे कंप्लीट होगा या प्रोजेक्ट में क्या एम्बिग्युइटीज हैं, क्या डिफिशियंसी है। उनको है आपने पैसा, आपको पैसा चाहिए, इंटरेस्ट के साथ पैसा लौटा दो। तो बहुत सारे लोग हैं, कोई भी पैसा नहीं लगाता अपने प्रोजेक्ट में या किसी भी प्रोजेक्ट में या प्रॉपर्टी में कि उसको पैसा रिफंड चाहिए। उसको अपना प्रोजेक्ट, उसको अपना यूनिट चाहिए, घर चाहिए, दुकान चाहिए, ऑफिस स्पेस चाहिए। सो रेरा आया तो रेरा ने एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स बनाया। सो रेरा किस पे एप्लीकेबल हुआ? रेरा रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पे एप्लीकेबल हुआ। रेजिडेंशियल अक्रॉस कुछ भी, either 1 BHK, 2 BHK, studio apartment, 3 BHK, 4 BHK, whatever be the, so there are certain set of rules of the registration of the project under RERA. कोई भी प्रोजेक्ट अगर 500 स्क्वायर मीटर या उससे ज्यादा पे बनता है तो रेरा में रजिस्ट्रेशन उसका मैंडेटरी है। कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें 8 यूनिट माने 8 फ्लैट या 8 कमरे या 8 जो भी ऐसे 8 अलग अलग सेपरेट यूनिट्स बनते हैं, तो उसमें रेरा में रजिस्ट्रेशन किए बिना वो नहीं किया जा सकता है। और वो प्रोजेक्ट जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है, ये मैं प्री रेरा की बात कर रहा हूं कि जब रेरा आया 2016 में तो देयर वर हंड्रेड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स, थाउजेंड्स ऑफ प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया जो कंस्ट्रक्शन फेज में थे। तो रेरा ने एक क्लॉज दिया कि जिसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है उसको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है रेरा में। रेरा के कुछ की प्रोविजंस हैं जो बायर्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इनिशियली बहुत केओस था, प्रोविजंस हैं, बिल्डर नहीं मान रहे, नहीं कर रहे हैं, बट धीरे धीरे थिंग्स आर गेटिंग क्लियर एंड क्लियर डे बाय डे। सो रेरा ने सबसे पहले इंश्योर कराया कि ओपन पार्किंग स्पेस को, जो कि एक बहुत बड़ा बिल्डर्स का सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, कि आप ओपन पार्किंग स्पेस नहीं बेच, यू कैन नॉट सोल्ड दी ओपन पार्किंग स्पेस। रेरा के आने के बाद, क्योंकि ओपन पार्किंग स्पेस कर देते हैं, वो ओपन पार्किंग स्पेस किसकी है? किसी की नहीं है। वहां पे आप कोई कहीं गाड़ी लगा दो, कुछ कर दो, बट वो ओपन पार्किंग स्पेस भी बेचते थे। तो अब सिर्फ ये हुआ कि सिर्फ कवर्ड पार्किंग स्पेस ही सेल करना है। कारपेट एरिया, उन्होंने बताया कि कारपेट एरिया और सुपर बिल्टअप एरिया जो है वो दोनों में डिफरेंशिएट होना चाहिए। बायर को आप एजुकेट करोगे। कारपेट एरिया क्या होता है? अगर हम आपके घर की बात करें तो घर के जो इंटरनल वॉल हैं वो सारे कारपेट एरिया में आते हैं, और सुपर बिल्टअप एरिया में आपकी बालकनी आ गई, आपके स्टेयर्स आ गए, आपके घर के बाहर की लॉबी आ गई, लिफ्ट का एरिया आ गया। और जो बुकिंग अमाउंट है वो 10, अगर आपने BBA एग्जीक्यूट नहीं किया है बायर के साथ तो 10% से ज्यादा का अमाउंट आप नहीं ले सकते। लेट्स सपोज कि किसी यूनिट का रेट जो है वो 50 लाख है, तो आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट करने से पहले 5 लाख से ज्यादा अमाउंट, नॉट मोर देन 4 लाख, यू कैन टेक फ्रॉम द बायर। प्रोपोर्शनेट शेयर इन कॉमन एरिया इज चार्जेबल। अब जो कॉमन एरिया है, जो मेंटेनेंस चार्ज लेते हैं बिल्डर्स, वो प्रोपोर्शनेट होता है कि अगर एक फ्लोर में एक टावर में 24 फ्लोर हैं और उसमें एक फ्लोर पे 4
यूनिट्स है तो उसमें प्रोपोर्शनेटली वो उनका एरिया डिवाइड होगा और उस हिसाब से मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा। डिफेक्ट्स लायबिलिटी पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट डजंट मीन कि बिल्डर से आपने पोजीशन ले लिया, आपको घर मिल गया, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है, कोई डिफेक्ट है, स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है क्वालिटी में, वर्कमैनशिप में या प्रोविजन ऑफ सर्विसेज में, तो रजिस्ट्रेशन के 5 इयर्स तक यू कैन अप्रोच रेरा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमने बहुत केसेस किए हैं और बहुत केसेस जीते हैं इस क्लॉज में। डिले इन हैंडिंग ओवर पोजीशन, आप डिले अगर कर रहे हो तो यू हैव टू पे दी डिले इंटरेस्ट, मनी रिसिप्ट। जो 70% अमाउंट आपको होगा मिलेगा प्रोजेक्ट का आएगा रिसिप्ट, जो आप सेल कर रहे हो बिल्डर, तो वो 70% आपको एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में रखना होगा और टाइम टू टाइम यू हैव टू इंटीमेट द स्टेटस ऑफ दैट अकाउंट थ्रू द चार्टर्ड अकाउंटेंट टू दी रेरा कि हमने 70% को कैसे यूज किया और उस प्रोजेक्ट के लिए ही यूज होगा। सिर्फ 30% ही अमाउंट जो है वो प्रोमोटर के अकाउंट में जाएगा। इंटरेस्ट रेट जो है एक यूनिफॉर्म हो गया है अक्रॉस, MCLR प्लस 2%, कहीं कहीं MCLR प्लस 1% है और कहीं कहीं MCLR प्लस 2% है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट टू स्टेट। हाँ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बायर के ही फेवर में है, बिल्डर के लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप भी डिले करते हो पेमेंट में तो आपको भी वही सारी चीजें जो हैं वो एप्लीकेबल होंगी। डिले इंटरेस्ट आपको भी MCLR प्लस 2% या 1% जो भी एप्लीकेबल होगा वो देना होगा। और आपने भी अगर डिमांड रेज कर दी है बिल्डर, हाँ, मतलब दैट मस्ट बी जेन्युइन डिमांड, तो अगर 3 इंस्टॉलमेंट तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो दैट विल बी फॉरफिटेड। और बिल्डर को अपने मटेरियल का स्पेसिफिकेशन देना है, खासकर अगर नॉन ब्रांडिंग मटेरियल्स हैं जिसमें कोई ब्रांड नहीं है, तो उसमें जो है आपको एक स्पेसिफिकेशन देना है कि किस तरीके से मटेरियल, कौन सा मटेरियल है, क्या यूज कर रहे हो, ये बायर को इन्फॉर्म करना दैट इज नेसेसरी। रजिस्ट्री और वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दैट कि नो बिल्डर कैन take any single pie before the registration of the project। तो एडवर्टीजमेंट भी नहीं कर सकते हैं और पेमेंट भी नहीं ले सकते हैं। अगर इफ यू और अभी यूपी में और महाराष्ट्र में एक ड्राइव चल रहा है कि अगर कहीं भी दिखता है कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो कि रेरा में रजिस्टर्ड नहीं है और एंड दैट इज and the builder is advertising that project, so आपको you can complain to the RERA and RERA will immediately take action against that builder। They are heavy penalty are being levied on these builders। एक सैंक्शन प्लान होता है जो कि एक प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले कंसर्न्ड उस एरिया की अथॉरिटी, जैसे कि लेट सपोज कि गुड़गांव है तो हरियाणा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, नोएडा है तो नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई, लेट सपोज बैंगलोर है तो हर सिटी हैज देयर ओन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले द बिल्डर हैज टू टेक सैंक्शन फ्रॉम दैट अथॉरिटी। वो सैंक्शन हो जाएगा तभी। अब एक मैप सैंक्शन हो गया, एक प्लान सैंक्शन हो गया, नाउ लेटर स्टेज में अब बिल्डर को लगता है कि इस प्लान में आई नीड टू मेक चेंज। सो जो उसमें अलॉटीज हैं, आइदर वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन के स्टेज पे ही होगा वो जब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, तो 2/3 ऑफ द अलॉटीज का अप्रूवल चाहिए कि हम सैंक्शन को, हम मैप को मॉडिफाई कर रहे हैं। और कहीं कहीं बिल्डर के ऊपर 5% ऑफ द टोटल कॉस्ट की भी पेनल्टी रेरा लगाता है। और अगर हम जो रेरा के डिसीजन हैं ऊपर एपेलेट ट्रिब्यूनल है, अगर एपेलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन बिल्डर नहीं मानता है तो इम्प्रिजमेंट है 1 साल का और 10% कॉस्ट ऑफ द अपार्टमेंट प्लॉट या बिल्डिंग जो है वो लेवाई होता है। So these are the legal provisions और we have the time constraint। later मैं एक वेबिनार करूंगा स्पेशली फॉर दिस, if you are going to invest in the real estate projects, either villa, either plot, either dwelling units, residential, commercial, retail, so what are the key important factors one should look into before investing a single pie in that project? Because prevention is always better than cure।
अगर आपने प्रिवेंशन पहले कर लिया तो इलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इलाज क्या है, आप फिर कोर्ट में जाओगे और थिंग्स आर विल टेक टाइम। ऐसा नहीं है कि रेजोल्यूशन नहीं आएगा, बट नोबडी वांट्स कि हमने अगर कहीं अपना पैसा लगाया है तो हम किसी एक प्रॉब्लम में फंसे, किसी लिटिगेशन में जाएं। सो उसके पहले एक प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस इज वेरी मच necessary. So there are number of factors which one should look into. ऐसा पैसा है, all of a sudden you have the money and you want to invest it. So don't take a decision, a dicey decision or a decision in a haste. जल्दीबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, otherwise it will always prove to be futile. So earlier I was हम ट्रेंड्स की बात कर रहे थे. So let's क्या ट्रेंड्स हैं, क्यों जो है ये मार्केट जो है वो ग्रो कर रहा है. दिस इज बिकॉज कि अब रिप्यूटेड डेवलपर्स लाइक प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, टीएलएफ, दे आर क्रॉसिंग बाउंड्रीज. अब प्रेस्टीज ग्रुप इज नाउ इन्वेस्टिंग इन एनसीआर और मुंबई के बड़े बड़े बिल्डर्स नाउ इन्वेस्टिंग इन गुड़गांव. So these things are acting as a catalyst. So इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो हैं वो एडवाइजरी कर रहे हैं बड़े बड़े फर्म्स को, बड़े बड़े कंपनीज को कि किस तरीके से यू हैव टू प्लान योर प्रोजेक्ट. people are the companies are appointing the experts in their team कि हमको प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले एक एक्सपर्ट्स की टीम आ जा रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि आई विल सफर आइदर बायर और आइदर बिल्डर. हम बिल्डर के साथ भी काम करते हैं तो हम उनको एडवाइजरी करते हैं, तो वो भी नहीं चाहते कि हम इस तरीके से किसी को परेशान करें. बट अगर चीजें निकल गई, आज मेरी लायबिलिटी 10 लाख की, अगर ये लायबिलिटी 10 करोड़ की हो गई, 10 लाख की तो आई कैन मीट, बट 10 करोड़ की मैं कैसे मीट करूंगा. सो दीज आर द थिंग्स. और कब चीजें स्लिप ऑफ होती हैं वो पता नहीं चलता. कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप्स, अब बाउंड्रीज क्रॉस हो रही हैं. फॉरेन इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं इंडियन रियल एस्टेट सेगमेंट में. रेजिडेंशियल रियल एस्टेट ट्रेंड्स क्यों आगे बढ़ रहा है? अर्बनाइजेशन पैटर्न्स, जो हमारा अर्बन लिविंग का एक स्टैंडर्ड है, एक जो शिफ्ट है, वो बहुत तेजी से इसको ड्राइव कर रहा है कि हम कैसे जो है हम एक अर्बन ट्रेंड में आए. तो उस तरीके से अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, सो जो हाई राइज अपार्टमेंट्स हैं उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा है. कभी एक टाइम हुआ करता था लोग चाहते थे कि एक प्लॉट ले ले, उस पर अपना घर बनाए, बट दैट इज गॉन डेज. कौन आज लोग नहीं चाहते. हम कहाँ अपने घर को प्रोटेक्ट करेंगे, क्या करेंगे, हम इससे बढ़िया सोसाइटी में रहेंगे, सिक्योरिटी रहेगी, सब कुछ रहेगा और हमको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, स्मार्ट होम्स, अब बहुत अच्छे अभी ये कंसेप्ट शुरू हुए हैं सारे मेट्रोज में, बट नेक्स्ट 2 to 3 years people are saying कि now the things will move towards स्मार्ट होम्स बनने लगे हैं. बट एक फुल्ली इंटीग्रेटेड स्मार्ट होम्स हम देखेंगे अगले 3 से 4 साल में. बहुत बड़ा सेगमेंट इनका आने वाला है. कस्टमाइजेशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी, एक टेलर्ड डिजाइन्स, लोग डाइवर्सिफाइड लाइफस्टाइल नीड्स, लग्जरी स्पेस पीपल आर वांटिंग. फॉर एग्जांपल, अभी लास्ट 6 months बैक इन गुड़गांव प्रोजेक्ट वाज लॉन्च, जिसके मिनिमम जो एंट्री पॉइंट थी दैट वाज अराउंड आई थिंक 6 to 7 crores, or within a week the project was overbooked and people were standing in queue कि मेरे को एक फ्लैट मिल जाए वहां पे. So things are changing like this. Commercial real estate trends, अब जब अर्बनाइजेशन हो रहा है, रेजिडेंशियल ट्रेंड्स जब इस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो वहां पे कमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट बहुत है. लेट सपोज कि अगर मैं आपको एक फिगर दूं तो नोएडा में ही एक लाखों की पॉपुलेशन है. तो उस पॉपुलेशन की नीड्स को कैसे पूरा होगा? तो उसके लिए कमर्शियल और रियल एस्टेट. अब कमर्शियल है, रियल एस्टेट है, वर्किंग स्पेसेस चाहिए, शॉप्स चाहिए, ऑफिसेस चाहिए. सो देयर इज अ वेरी डायर डिफरेंस बिटवीन दी कमर्शियल स्पेस. कमर्शियल में भी जो सेगमेंट है, एक हो गया आपका ऑफिस और एक हो गया रिटेल. सो इनकी आईटी सेक्टर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, डेटा सेंटर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज, रिटेल की मार्केट इज टेकिंग अ गुड लीप इन द भारत इंडस्ट्री. सो ये सारे जो है
चीजों को एक ड्राइव कर रहे हैं, इनोवेशन की, या थिंग्स आर मूविंग इन अ राइट डायरेक्शन। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव्स, जो गवर्नमेंट अपने इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो भी एक बहुत अच्छा एक सेगमेंट है जो इसको ड्राइव कर रहा है। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स गवर्नमेंट कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट। लेट्स सपोज मैं आपको बताता हूं कि अभी 2020-21 तक मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स जो हैं जो बैड हो गए, उनको रिवाइवल का कोई चांस नहीं दिख रहा था। गवर्नमेंट इन 2023 केम आउट, 2022 केम आउट विद स्वामी फंड। अब उस स्वामी फंड में इन्होंने कॉर्पस बना दिया एंड दिस सेक्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि अगर ये बिल्डर इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करता है तो दे कैन अप्रोच टू द स्वामी फंड, और गवर्नमेंट उनको एक फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और एक लॉन्गर टेन्योर के लिए प्रोजेक्ट पैसा फंड कर रही है कि आप अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करो। सो गवर्नमेंट आल्सो वांट्स की जो बैकलॉग है वो खत्म होना चाहिए, ताकि जो नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं उनको एक अच्छा क्लियर रास्ता मिले। सो अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम्स बहुत सारे, प्रधानमंत्री आवास योजना में इस बजट में ही एक लेट मी कम टू दैट फिगर, इस बजट में ही गवर्नमेंट ने जो है वो बहुत बड़ा एक वो रखा है, एक फंड रखा है प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए। तो उसमें करोड़ ऑफ होम्स आर गोइंग टू बी बिल्ट इन नेक्स्ट 3 to 4 years. So these things are guiding market. FDI गवर्नमेंट ने टाउनशिप और सेटलमेंट डेवलपमेंट के लिए FDI 100% कर दिया है। 79,000 करोड़, या दिस डेटा आई वाज सर्चिंग, 2023-24 जो यूनियन बजट अभी जस्ट इस फरवरी के स्टार्टिंग में ही वी हैव सीन 79,000 करोड़ पीएम आवास योजना के लिए, दैट इज इक्विवेलेंट टू $9.64 बिलियन अनाउंस हुआ है। सो इन नेक्स्ट 4 to 5 or 6 years, this 79,000 crore will be allocated to the PM Awas Yojana. So you can see ki how majorly this sector is going to grow. So this is all for today webinar. I hope you all have gathered a good knowledge and information. If anyone has any questions, they can put.